Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this video lecture, we are going to express a sine theta plus b cos theta in the form of r times sine theta plus phi. Now, what is r and how you can find sine of theta plus phi? So that is the sum of angles theta plus phi. So you know sine alpha plus beta is equal to sine alpha cos beta plus sine beta cos alpha. You know that from the fundamental law of trigonometry. So यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, इसको इस फॉर्म में जो है r टाइम्स sin थीटा प्लस पाई, ये हमने कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंसिडर अ पॉइंट इन टू डायमेंशनल प्लेन. लेट्स से दिस इज अ टू डायमेंशनल प्लेन. x axis, this is my x axis, this is y axis, that is the origin. Now I am considering a point P in the plane. You can consider point anywhere in the plane. I am considering that point in the first quadrant having coordinate A and B. So this point has x unit distance on x axis, so there is a unit distance, and a unit distance on x axis, and this point has b unit distance on y axis. So from origin to this point, this is b unit, and from origin to this point, this is a unit. So these are the coordinates of point P. Okay, now consider, or you can make a standard angle considering theta is a standard angle with initial side on x-axis and terminal side OP in the first quadrant. So this is theta. This is a standard angle. Okay, now if I draw a perpendicular point P on x-axis, so that become a right angle triangle. In this right angle triangle, this is A, this length is equal to B because this is a perpendicular distance. It is known from the coordinates of the point, y coordinate, and this distance from origin to this point is denoted by R. Now you clearly see that, let's say name this vertex with A. So OAP is a right angle triangle. So the triangle OAP is a right angle triangle. So if it is a right angle triangle, so we can use Pythagoras theorem. At vertex A, the angle is 90 degree because we draw perpendicular from point P on x-axis. So that is your perpendicular, and this vertex A has 90 degree. So the side opposite to 90 degree, or the vertex having 90 degree, its opposite side is called hypotenuse. So in this case, R is your hypotenuse. A is a base and B is perpendicular. So you know that Pythagoras theorem is applicable only if the given triangle is a right angle triangle. So in this case, the given triangle is a right angle triangle. It means hypothesis for the Pythagoras theorem is true. So therefore, according to Pythagoras theorem, if a triangle is a right angle triangle, then the hypotenuse square will be equal to the sum of the squares of remaining two sides. So from here I can write hypotenuse will be equal to the sum of the squares of remaining two sides. So that is the statement of Pythagoras theorem. Because the triangle is a right angle triangle, so you can write this. Now r is equal to square root a square plus बी स्क्वेयर. तो ये आपके पास r की वैल्यू होगी. यहाँ पे ये जो r है, जब आप a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा को कन्वर्ट करोगे r साइन थीटा प्लस 5 में, सो यहाँ जो r इन्वॉल्व है, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट आप लोगे तो यू विल गेट r. यू गेट r फ्रॉम हेयर. मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है और नेगेटिव जो स्क्वायर रूट है इसको अवॉइड किया है, क्योंकि r आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट अ लेंथ or a distance from O to point P, so that's why there will be always positive. So इसी वजह से मैंने यहाँ पे माइनस इग्नोर किया है. तो ये तो आपके पास R की वैल्यू आ गई. तो जब आप ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो R के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे. इसके साथ साथ आगे हमारे पास फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल हमें पता है
कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा के। तो यहाँ ये जो आपके पास साइन थीटा प्लस फाई है, साइन थीटा प्लस फाई हमारा क्या होगा, थीटा प्लस फाई हमारा होगा साइन थीटा cos phi. Pi is also an angle. Then sin phi cos theta. तो यहाँ पे अब इसके साथ आप क्या करें, r मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास r टाइम्स साइन थीटा प्लस फाई और ये होगा r साइन थीटा cos पाई प्लस r टाइम्स साइन फाई cos थीटा। तो ये r साइन थीटा प्लस फाई को मैं लिख सकता हूँ r cos पाई साइन थीटा प्लस r साइन पाई cos थीटा। यहाँ पे इस r cos पाई को मैं कंसिडर करता हूँ कि दैट इज़ a, r cos पाई, ये मैंने a के बराबर लिया है, और b लेट से दैट इज़ r साइन फाई। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन आप कर लें तो आपका r साइन थीटा प्लस फाई जो है ये r cos पाई की जगह पे a, साइन थीटा अपनी जगह पे, और आपका r साइन पाई की जगह पे होगा b और cos थीटा अपनी जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास a साइन थीटा प्लस b cos थीटा r साइन थीटा प्लस फाई में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास r cos पाई के बराबर होगी और b की वैल्यू हमारे पास r साइन फाई की बराबर होगी। r हमारे पास क्या होगा, r इज द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये याद रख ले कि ये थीटा और पाई हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स होते हैं, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल थीटा एंड फाई लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, a की जगह पे कोई वैल्यू, b की जगह पे कोई वैल्यू, और उसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है, तो r आपने ये यूज़ करना है, r आपने ये यूज़ करना है, और हमारे पास r cos पाई आपके पास a के बराबर होगा और r टाइम्स साइन पाई आपके पास b के बराबर होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। The exercise 10.1 question number 13. Exercise 10.1 question number 13 part number 1. You need to convert 4 sin theta plus 3 cos theta into all times sin theta plus pi. इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमने अगर r साइन थीटा प्लस फाई को कन्वर्ट करना है, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा को इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, वी नो फ्रॉम द थ्योरी दैट a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू ऑल टाइम्स साइन थीटा प्लस पाई, where a is equal to or cos pi, b is equal to or sin pi, and r is square root a square plus b square. So here I need the value of cos pi, sin pi and r to convert 4 times sin theta plus 3 cos theta into or times sin theta plus phi. तो आप क्या करें, आपके पास ये गिवन है, तो यहाँ पे मुझे पहले r चाहिए, तो ये लेट से दिस इज़ 1, और इसके साथ साथ आप ये ले लें, लेट से दिस इज़ 2, दोनों को कंपेयर कर लें। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, तो देयरफॉर r आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 square, so that is 16 plus 9 25, so this implies that r equal to 5, r आपके पास 5 आ गया। अब आपने r तो मालूम किया, आपको
कास पाई और साइन पाई चाहिए। तो आप ऐसे करें कि ये जो आपका 5 है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। देखिए ये आपके पास है 1 4 टाइम्स साइन थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस थीटा, इसके साथ 5 में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 5 से ये मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दैट इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट कॉस पाई एंड साइन पाई। तब देखिए ये 5 अपनी जगह पे होगा, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो असल में ये क्या होता है, ये आपके पास r टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस फाई प्लस r टाइम्स साइन फाई इनटू कॉस थीटा होता है। तो अब देखें साइन थीटा तो आपको चाहिए, लेकिन कॉस पाई की तुम्हें ज़रूरत है, तो वो कॉस पाई और यहाँ पे इसके साथ r है। तो जब आप 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन वाला 5 है उसको एज इट इज छोड़ दी, क्योंकि ये आपका r है और ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और ये 1/5 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 4/5 साइन थीटा और ये आपके पास 3/5 कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे अब देख लें ये 5 आपके पास r है और कास पाई की वैल्यू आपके पास ये है, तो कास पाई किसके बराबर है 4/5 के साइन थीटा। ये आपके पास साइन पाई की वैल्यू क्या है 3/5 है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन फाई और ये होगा कास थीटा। तो ये आपके पास r और ये आपके पास बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल के मुताबिक ये साइन थीटा प्लस पाई के बराबर होगा। यहाँ r 5 है, आपके पास कास पाई जो है वो है 4/5 और आपका जो साइन पाई है वो है 3/5। तो इसी तरह आप साइन पाई और कास पाई को इसी तरह मालूम करोगे, आर आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड करोगे। तो आपने देख लिया कि ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गया विद वैल्यू r इक्वल टू 5 कास पाई इज 4/5 साइन पाई इज 3/5। तो सिमिलर प्रोसीजर के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टेकिंग रिव्यू ऑफ दिस लेक्चर, रिव्यू में आपके पास क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ आई राइटिंग a sin theta plus b cos theta in the form of r times sin theta plus phi, तो consider a point P in plane theta is a standard angle जिसका इनिशियल साइड x एक्सिस के ऊपर टर्मिनल साइड OP है आपके पास। आपका ये जो ट्राइंगल इफ यू ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सिस, तो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन दिस केस 90 इज एट वर्टेक्स A, तो हाइपोटेन्यूज इज r, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो r विल बी इक्वल टू प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये आपके पास O और P के बीच में R लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास हो गया। अब अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर A की जगह पे आप सब उस कर ले कि R कास पाई के बराबर है और B R साइन पाई के बराबर है और R आपके पास ये है, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने डिस्कशन की। सो फ्रॉम देयर डिस्कशन वी कंक्लूड दैट a times sin theta plus b times cos theta is equal to r times sin theta plus 5 if the a is r times cos phi and b is r times sin phi with r equal to a square plus b square स्क्वायर रूट। तो आपने अगर इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू चाहिए। तो वो a b की वैल्यू मैंने इन दोनों को कंपेयर करके, तो देखें ये दोनों आप कंपेयर करते हैं, इन दोनों को आप कंपेयर करते हो तो आपको a b की वैल्यू मिलेगी। वो तो वहाँ से आपको पता है कि r हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r की वैल्यू 5 है। इसको आपने अगर कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में है तो इसके साथ r को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, r को बाहर ही छोड़ दें और 1/r जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे ये r है, ये पाई कास पाई होगी और ये वैल्यू आपके पास साइन पाई की बराबर होगी। तो ये आपने यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, 4/5 की जगह पे कास पाई, 3/5 की जगह पे साइन पाई और आपके पास r 5 के बराबर है। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन से देख सकते हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन था 4 टाइम्स साइन थीटा प्लस 3 टाइम्स कास थीटा वो कन्वर्ट हो गया r टाइम्स साइन थीटा प्लस 5 विद r इक्वल टू 5 कास पाई इज 4/5 एंड साइन पाई इज 3/5। सिमिलरली आपके पास ये पार्ट नंबर 2, यहाँ पे 15 टाइम्स साइन थीटा प्लस 8 टाइम्स कास थीटा आपने कन्वर्ट करना है r साइन थीटा प्लस 5 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक
ये कन्वर्जन आपने करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लें। देखिए ये आप कंपेयर कर लें इसके साथ, तो a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 8, तो r आपको 17 मिलेगा। r आपका 17 है, तो r को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले इसके साथ। तो r हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसके साथ, तो ये जो डिवीजन वाला r है 1/r वो आगे मल्टीप्लाई कर लें, तो 17 ये r है, ये 15/17 का पाई होगा और 8/17 आपका sin 5 होगा। तो यहाँ से आपको अपना रिक्वायर्ड मिल जाएगा, आपका एक्सप्रेशन 15 टाइम्स साइन थीटा प्लस कास पाई प्लस 8 टाइम्स कास थीटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा r टाइम्स साइन थीटा प्लस पाई में। तो ये यहाँ पे अगर आपने इन शॉर्ट a टाइम्स साइन थीटा प्लस b टाइम्स कास थीटा, अगर आपने r टाइम्स साइन थीटा प्लस फाई में कन्वर्ट करना है, सो यू नीड द वैल्यू ऑफ कास फाई, साइन फाई एंड r। वो हम किससे फाइंड करते हैं, वो हम r पहले फाइंड करते हैं और फिर r को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं गिवन एक्सप्रेशन के साथ, जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है r साइन थीटा प्लस फाई में। r को आप छोड़ देते हो, जो डिवीजन में 1/r होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो। तो जो साइन थीटा के साथ होता है और जो कास थीटा के साथ होते हैं, साइन थीटा वाले को हम कास पाई कहते हैं और कास थीटा के साथ जो होता है वो हमारे पास साइन पाई होता है। और आपको पता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल दैट साइन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा कास पाई प्लस साइन phi cos theta, because you know sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus sin beta cos alpha, you know from fundamental law of trigonometry। तो ये आप सारा कन्वर्जन कर सकते हैं। देयर इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 3 और पार्ट 4, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है। एज इट इज सब कुछ आपने करना है, जस्ट वैल्यूज आपके पास ए बी की चेंज होंगी एंड यू नीड टू सबमिट दैट असाइनमेंट on 2nd January 2021 through this email. Thank you.